Namaste. My name is Mohan Kumar, founder director of Udjan Foundation. Udjan is a Sanskrit word which means hydrogen. Why green hydrogen? Hydrogen is free of carbon and one of the most abundantly available resource in the universe. We at Udjan are working towards implementing projects based on green hydrogen such as use of green hydrogen as fuel in transport industry. At Udjan, our focus is on to carry out research and development for acceleration and implementation of green hydrogen initiatives. Create public awareness through seminars and workshops. Also, Udjan had organized an event at Nitte Meenakshi Institute of Technology on 8th October 2023 on the occasion of National Hydrogen and Fuel Cell Day. Honorable Governor of Karnataka, Shri Thawar Chand Gehlot ji, graced the occasion and appreciated the initiatives of Udjan Foundation and promised his full support in all our future endeavors. Going forward, Udjan Foundation is celebrating World Earth Day on Monday, 22nd April 2024. Udjan Foundation is striving to build ecosystem for faster implementation of green hydrogen with various stakeholders such as government bodies, research institutes, industries, educational institutions. So we request all the people to contribute in this noble cause. Thank you. Hello, I am H.B. Nayak, Chairman, Udjan Foundation, Bangalore, Karnataka. Udjan Foundation is a non-profit organization working towards mitigating the global warming and climate change through renewable energy sources such as green hydrogen, which is abundance available in universe. The world is moving towards the green hydrogen. Udjan Foundation has taken initiative, first of its initiative in India, towards accelerating implementation of green hydrogen in transport sector by setting up the microgrids in universities and colleges to focus on research and development for faster implementation of technology, by common man through collaboration with relevant stakeholders such as government, industry, research institute, experts and education institutes. In continuation of our work, we are observing World Earth Day on Monday, 22nd April 2024 at Cradle Office. We are expecting dignitaries in the field from across the world participating in the event. We are also inviting more than 50 technical education to participate. We would be signing formal MOUs with these technical institutions for further research and development on green hydrogen initiatives. We request everyone to join hands in these initiatives. Thank you. आज के इस समारोह में मंच पर उपस्थित प्रिंसिपल आदरणीय डॉक्टर एस.सी. नागराज जी, निदेशक आदरणीय के.वी. राव जी, प्रशासक आदरणीय श्री रोहित पुंजा जी, विप्रो के पूर्व अध्यक्ष एवं उज्जैन संस्था के अध्यक्ष श्री एच.पी. नायक जी, प्रोफेसर प्रहलाद तेंग जी, प्रोफेसर मनीष ठाकुर जी, संस्थान के फैकल्टी डीन, प्रोफेसर, विद्यार्थीगण,
ಸನ್ಮಾನನೀಯ ಅತಿಥಿಗಳು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. संस्थान द्वारा नेशनल हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल के डे के आयोजन एवं स्वच्छ और ग्रीन ऊर्जा हेतु उन्नत अनुसंधान केंद्र शुभारंभ के लिए संस्थान के समस्त सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह संस्थान कर्नाटक के शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक है जो व्यावसायिक शिक्षा के उत्कृष्टता प्रदान करने की दिशा में सराहनीय कार्य कर रहा है। वर्तमान में संस्थान सी वाटर से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने की परियोजना पर कार्य कर रहा है। इस प्रकार की परियोजना की आज महती आवश्यकता है। इस परियोजना के लिए संस्थान एक गैर लाभकारी संगठन उज्जैन के साथ कार्य कर रहा है। उज्जैन संगठन ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित अनुसंधान और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित संगठन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2021 को औपचारिक रूप से अक्षय ऊर्जा से कार्बन मुक्त ईंधन पैदा करने की योजना में तेजी लाने के लिए एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू करने की घोषणा की थी और भारत के लिए ऊर्जा में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 2047 अर्थात भारत की आज़ादी के 100वें वर्ष का अवसर लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु हमें सक्रिय प्रयास करने की आवश्यकता है। यह मिशन भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने और अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में मदद करेगा। भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात में वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को स्वीकृति दी गई है और इस मिशन के अंतर्गत 35 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन विनिर्माण क्षमता स्थापित करने के लिए परियोजनाएं शुरू की गई है। इस मिशन से भारत की ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता कम से कम 5 MMT प्रति वर्ष तक पहुंचाने की संभावना है और 2030 तक 8 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त करने का लक्ष्य है, जिससे 6 लाख से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना भी है तथा 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के प्रति वर्ष लगभग 50 MMT की कमी होने की संभावना व्यक्त की गई है। परिवहन क्षेत्र ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। हाइड्रोजन फ्यूल के इस्तेमाल से डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल घटेगा और इससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता भी घटेगी। इसका एक बड़ा फायदा ये भी होगा कि प्रदूषण को रोकने में मदद मिलेगी। इस विषय पर G20 में भी चर्चा की गई। भारत में अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के कारण ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की अधिक संभावना है, जो देश को ऊर्जा के मामले में धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनाने में भी सहायता करेगा। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन नीति जारी होने के बाद
निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए परियोजनाएं स्थापित करने के बारे में घोषणा की है। ग्रीन हाइड्रोजन सर्वोत्तम शून्य उत्सर्जन समाधानों में से एक है। यह पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है। भारतीय रेलवे ने नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन के तहत एक अहम कदम उठाते हुए हाइड्रोजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल शुरू किया है। हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने नई दिल्ली में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को हरी झंडी दिखाई है, जो सुचारू रूप से चल रही है। हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को हरी झंडी दिखाने के बाद देश में इस योजना के प्रति रुझान बढ़ा है, जो स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। स्वच्छ और ग्रीन ऊर्जा हेतु उन्नत अनुसंधान केंद्र का आज शुभारंभ किया गया है। निश्चित ही ये केंद्र राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होगा। मैं यहाँ उपस्थित वैज्ञानिकों को, इंजीनियरों को और अनुसंधानकर्ताओं तथा प्रोफेसरों को उनके दृष्टिकोण और भारत को ग्रीन ऊर्जा केंद्र बनाने के लिए लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता के लिए बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे यहाँ बना हुआ मेरा फोटो भी प्रदान किया गया और यहाँ बनी हुई शाल भी भेंट की गई। इसके लिए मैं उन निर्माताओं को भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं इस कार्यक्रम में आकर के अत्यधिक प्रसन्न हूँ और आप सब ने मेरा जो भाषण सुना है उसके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय कर्नाटक।